NO टाइप के चैप्टर्स किए हैं अभी तक। So unfortunately on this weekend, Friday and Saturday, you have organic AITS, bar test. So we'll try to cover up organic chemistry in 3 lecture, जो impossible सा task दिख रहा है। In 6 hours we can't do complete revision of organic chemistry, but at least जो first 3 chapter है, including GOC, including isomer, including reaction mechanism, ऐसे वो 3 चैप्टर हम लोग डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। Then फाइनल जो बाद वाले चैप्टर है, इंक्लूडिंग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, आई होप वो एकदम लास्ट में ही पढ़े तो शायद उनके रिवीजन की जरूरत नहीं है तुम लोग, है ना। या आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, एक्सेप्ट फ्यू नेम रिएक्शन, एक्सेप्ट फ्यू इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाकी सब कुछ रिवाइज हम लोग कर नहीं सकते, है ना। तो obviously our aim is today at least GOC वाला पार्ट कुछ अच्छे से रिवाइज फिर से कर ले हम लोग, and then next lecture हम लोग कोशिश करेंगे मतलब आइसोमर एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का कुछ पार्ट हो जाए, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से कर लेंगे, है ना, उतना तो हम लोग करेंगे। So in GOC, if you remember, is something related to stability comparison, stability of carbocation, carbon ion, free radical, some resonance, aromaticity, resonance energy, ऐसी ढेर सारी कहानी होती थी, है ना। Stability of resonating structures, तो obviously शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम लोग को फिर से पढ़ना होगा, but I will just try to do few examples, और examples के बीच में अगर कुछ concept आते रहेंगे then we'll discuss, है ना। तो let's say we'll start from resonating structure की stability, we'll see few example of resonance energy also, we'll see few example कौन सा लोन पे resonance से participate करेगा, कौन सा नहीं करेगा, and ढेर सारी चीजें, है ना। तो देखो कितनी जल्दी हम लोग कर पाते हैं, but GOC में ढेर सारा है ना। तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल भी हम लोग ने किया तो मैनेजेबल है कुछ सिचुएशन, है ना। सो फर्स्ट लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, है ना। इट इज स्टेबिलिटी ऑफ resonating structure, है ना। So if you remember, obviously तुम्हारे क्लास नोट्स में ना वो सब रूल्स लिखे होंगे कि following rules has to be considered to compare stability of resonating structure in a given sequence only, है ना। Given sequence only means अगर first rule which may be let's say maximum number of pi bond, अगर उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे then we'll go to octet rule, उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे then it is charge distribution, charge separation, and the most important thing is कौन सा उसमें aromatic है या नहीं है ना। ऐसे कुछ रूल्स उन लोगों ने पढ़े हुए हैं। So let's say if you see first example based on this, this may be let's say one of the resonating structure, and due to let's say p pi d pi back bonding, it's another resonating structure may be phosphorus having negative charge. We have to compare the stability of these two resonating structure. In first resonating structure, octet of each and every element is completed. थाने सेंटर कुछ तो परेशानी है तुम लोगों को। So let's say in these two structure, first structure में octet of each and every element is completed. Second वाले केस में octet rule is not satisfied as phosphorus become super octet or expanded octet compound, let's say, ना। So out of let's say these two, first and second, which one is more stable? Second structure is found to be more stable than that of first one. So generally, whichever have more number of pi bond, generally whichever have more number of pi bond, उसमें octet rule भी satisfy होता था, है ना। तो दोनों कभी भी contradictory type से नहीं होते थे, but unfortunately इस वाले example में है वैसा, है ना। इस वाले केस में we have more number of pi bond, but octet rule is not satisfied. अच्छा, in this case, although we have less number of pi bond, but octet rule is satisfied there, है ना।
So obviously more number of pi bond dominate over octet rule. Similarly, if you see, let's say another example. Similar to this, let's say if you see another example based on this, it may be, let's say C double bond NH, it may be O minus and let's say S minus, oxygen and sulfur. It's another resonating structure, may be carbon having double bond O, sulfur minus, and let's say it is NH here, let's say NH minus. It's another resonating structure will be double bond sulfur, it is NH minus and O minus. Let's say for same compound it is three different resonating structure to compare their stability. 312 stability और So unfortunately 312 आंसर है नहीं. To compare their stability. So 132 132 भी आंसर नहीं है, पर अब कम ही कॉम्बिनेशंस बचे हैं ना. 0.23 क्योंकि इसमें नेगेटिव स्टेबल है. एस में नेगेटिव क्यों स्टेबल है? सल्फर इज रिलेटिवली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सल्फर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. साइज ऑफ सल्फर इज बिग. सल्फर का साइज बड़ा. बट वो तो हाँ, कहीं ना कहीं ना आंसर में वही एक्सप्लेनेशन है कि सल्फर का साइज बड़ा है, ड्यू टू विच इफ यू सी फर्स्ट रूल ओनली पाई बॉन्ड है ना, more number of pi bond. In this case, this pi bond is formed due to 2p 3p sideways overlapping. If you remember in inorganic chemistry also, only 2p sideways overlapping is effective है ना to form pi bond. तो effectively ये वाला pi bond effective है ही नहीं है ना. So if you see number of pi bond, उसमें शायद मैं उसको काउंट ही ना करूँ ना, या आई कैन से ये जो एनर्जी रिलीज होता फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में, इट विल बी लेस इफेक्टिव. बाकी दोनों में जो पाई बॉन्ड है इट इज फॉर्म ड्यू टू 2p ओवरलैपिंग एंड thus 3 शुड बी लीस्ट स्टेबल. आउट ऑफ 1 and 2 confirmly let's say 1 is more stable than that of 2, as in first oxygen which is more electronegative have negative charge in comparison to that of nitrogen. Nitrogen is relatively less electronegative. So charge distribution, more electronegative element should consist negative charge and more electropositive element should consist positive charge. तो आई होप ये एग्जाम्पल दोनों को समझ में आ रहा है. हमेशा एकदम आंख बंद करके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो सब कंपेयर नहीं करना है ना. इसका कुछ आंसर आ जाता, लेट्स से 1 2 3. इसमें कोशिश करना कि नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग ना अपने नोट्स लेके आना, जो तुम्हारे क्लास नोट्स थे. तो जब भी हम लोग लेट्स से स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करा, नोट्स में वो ओपन कर लिया. तो मे बी कुछ डाउट्स ना तुम लोग को नोट्स में भी आएंगे पढ़ते पढ़ते, वो सब भी तुम लोग डिस्कस कर सकते हो है ना. सिमिलरली लेट्स से इसमें एक टर्म कुछ इस टाइप का, रेजोनेंस एनर्जी. If you remember the definition of resonance energy is it is energy difference between resonance hybrid structure and one of the most stable resonating structure. To have higher resonance energy,
we should have effective delocalization. Effective delocalization through resonance. Then compound should have more resonance energy. For example, let's say if we have this compound and similarly let's say if we have this compound, out of these two which one have more resonance energy? सेकेंड वन. ऐसे कुछ एग्जाम्पल तुम लोग के बुकलेट में भी होते थे. सेकेंड है मोर रेजोनेंस एनर्जी देन फर्स्ट वन. इफ यू रिकॉल सम कॉन्सेप्ट, सम टर्मिनोलॉजी, हाँ शायद इसको हम लोग कुछ एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोल रहे थे और इसको हम लोग कुछ क्रॉस कॉन्जुगेशन बोल सकते थे ना. So in this case, lone pair of electron can simultaneously delocalize with both pi bond. In this case, lone pair of electron can delocalize either with this pi bond or this pi bond. Simultaneously दोनों के साथ नहीं कर सकता है ना. It's a very similar to this. If you remember this type of example also, let's say having double bond and double bond, and similarly let's say double bond and double bond, है ना. Let's say इसमें the same reason. Let's say simultaneously it can have resonance और इस वाले केस में let's say cross conjugation. इसी में कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता था. लेट्स से हैविंग डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड सिमिलर टू दिस लेट्स से इट मे हैव पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हियर. आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी? सर हाँ बोलो. So when we compare resonance energy, do we compare the magnitude or the with the signs too? वैसे जो भी हम लोग एनर्जी कंपेयर करेंगे इट इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, है ना. जैसा whenever we compare heat of formation, hydrogenation, resonance energy, lattice energy, anything, है ना, वो सब मैग्नीट्यूड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना. Yes sir, thank you. So out of these two, है ना, which one have more resonance energy? हाँ ये थाने वाले बच्चे अच्छे डाउट पूछ रहे हैं. सर कार्बन पे 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं और कार्बन पे प्लस चार्ज है. दूसरे केस में कार्बन पे 3 फिनाइल ग्रुप्स है और नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा स्टेबल हो? इन जनरल ना हम लोग कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन ऐसा स्टेबिलिटी कंपैरिजन ना कर नहीं सकते यार, है ना. जैसे हम लोग समझेंगे भी कि भाई हम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते समय या कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते समय हम लोग उनके एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना. बड़े जैसे हम लोग इवन ऐसा भी नहीं बोल सकते, वो तो तुम बहुत बड़ा कंपाउंड बता रहे हो. वी कांट कंपेयर कि मिथाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या मिथाइल कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है ना. हम लोग इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना. सर बट एक जगह पे लिखा था कि वो कार्बो एनायन होता है तो दैट इज नॉन प्लेनर. तो जब 3 फिनाइल ग्रुप्स होंगे तो वो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा. तो उसने बताया मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट, हम लोग स्टेबिलिटी कंपैरिजन नहीं कर सकते. हाँ उन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं ना. ओके थैंक यू सर. तो स्टेबिलिटी हम लोग समझेंगे कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी कंपैरिजन का मीनिंग क्या है या कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी कंपैरिजन का मीनिंग क्या है ना. बट हम लोग एब्सोल्यूट कंपेयर नहीं कर सकते है ना. इन दोनों में किसका रेजोनेंस एनर्जी हायर है? इन दोनों का ना रेजोनेंस एनर्जी सेम है, ये सेम ही है बेसिकली, है ना. दे आर जस्ट resonating structure of same carbocation, so both have same resonance energy basically, same ही वो compound है ना. तो मतलब इसमें ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें extended resonance है और इसमें cross conjugation है. both are same carbocation. Similarly ये example या सब बच्चों ने सीखा होता है कि let's say it is benzene, it may be let's say pyridine, it may be let's say this type of pyrrole.
this may be, let's say, furan, and this may be, let's say, थायोफ्यूरान, है ना, थायोफीन भी बोलते हैं उसको, है ना. So let's say it is A, B, C, D and E. Out of them, which compound consists maximum resonance energy? A का resonance energy, ये जो आइडिया है कितना होता है? minus 152 kilojoule per mole, or is somewhere approximately minus 37 kilocalorie per mole, है ना. 4.1 से डिवाइड करेंगे. Then the B and E consist nearly same, है ना, consist nearly same resonance energy. अच्छा, E का ज्यादा क्यों होता है COD से? उसमें एडिशनल p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग भी है. सल्फर कंसिस्ट वैकेंट 3d ऑर्बिटल, and then it is that of C, and then C more than that of D. In the case of C, nitrogen is more electropositive, तो more plus R effect in comparison to that of oxygen. ये एग्जाम्पल कॉमन ही है. आई होप सब बच्चों के क्लास नोट्स में होना चाहिए शायद ऐसा एग्जाम्पल, है ना. One of the specific example may be of this type, let's say, है ना. Suppose, let's say, this compound is naphthalene, sorry, anthracene, है ना. And another compound may be of this type, है ना. It's isomer only. Out of these two compound, which consists more resonance energy, second compound है more resonance energy than first one. अच्छा, इसको ना प्रूव भी कर सकते हैं. जैसे इसका कहना कि रेजोनेंस एनर्जी कुछ इतना है, तो इसको प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ आसान सा, once we draw its resonating structures, for example, if you see first one, if you draw its resonating structure, let's say one of the resonating structure may be look like this. और सिमिलरली जब लोग इसके भी ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, तो लोग कुछ ऐसा प्रूव करने की कोशिश करेंगे. Here let's say two rings are found to be aromatic, है ना, but third ring aromatic नहीं है इस वाले केस में. ऐसे हम लोग इसके और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, और इसके भी ऐसे हम लोग और डिटेल्ड में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, एंड देन वी कैन प्रूव, है ना, कि इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर रिंग्स विल बी एरोमेटिक, है ना. ऐसा कर लेंगे, ऐसा प्रूव हो जाता है ना. बट अभी के लिए हाल फिलहाल यू कैन रिमेंबर दिस कंपाउंड हैव लेस रेजोनेंस एनर्जी इन कंपैरिजन टू दिस, है ना. वैसे लोग ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि भाई दिस कंपाउंड कंसिस्ट रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग इन कंपैरिजन टू दिस. सर वो स्ट्रक्चर ई का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा क्यों होगा? मतलब ई में तो डी और पी वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, बल्कि डी और सी में तो पाई जो बॉन्ड होना है वो तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ना, डी पाई पी पाई से. तो मैं कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन द केस ऑफ ई वो सारे स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही जो सी और डी में बनेंगे, है ना. इन द केस ऑफ ई इसका 3p 2p ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा, but additional. In the case of E, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी बनेंगे, है ना. In the case of E, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बनेगा, and this which is not possible in the case of COD, है ना. सर तो एडिशनल स्ट्रक्चर बनेंगे जी उसमें. ठीक है, ठीक. So I hope कुछ रेजोनेंस एनर्जी का कुछ तो थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन ऐसा कुछ कर सकते हैं. So could you please explain the stability between anthracene and the क्या बोलते हो? नेक्स्ट कंपाउंड क्या होता है? एंथ्रासीन एंड फिनेंथलीन. अच्छा, उसमें दो, अच्छा दोनों का अगर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बच्चे ना, जैसा इफ यू सी इन द केस ऑफ एंथ्रासीन
if you see the structure, let's say कुछ इस type का, suppose it's one of the resonating structure, maybe look like this. You can draw it's another resonating structure. It may be, let's say, something look like this. You can draw its more structure basically, na? And then you have to just count. Just count means in this structure, 2 rings are found to be aromatic. In this structure, only 1 ring is found to be aromatic. And once we draw more structure of this type, and then if you count total how many rings are found to be aromatic, and the same thing you can do for it's another isomer. So we have more number of aromatic ring in second compound and thus have more resonance energy, let's say more delocalization, है ना? तो वैसे लोग ड्रॉ कर करके देख सकते हो, है ना? Okay, sir, thank you. A B से greater क्यों है? अच्छा, इस वाले केस में there is no charge separation during resonance, है ना? If you see it's another resonating structure will be similar to that of benzene. But in this case, during resonance, sulfur having positive charge and then carbon having a negative charge means charge separation. There is no effective delocalization. Sir, हाँ बोलो. so to compare benzene and pyridine, can we say benzene में सारे equivalent resonating structures बनते हैं? बेंजीन में सारे equally contributing structure बनते हैं और pyridine में वैसा नहीं है ना. Yes, sir. Is it right? हाँ इस राइट बिल्कुल राइट है. मतलब बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होंगे और pyridine में सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे, है ना. Okay, sir. So let's say apart from resonating structure की stability and resonance energy, if let's say we have to compare bond length comparison is related to many factor. Let's say कितना double bond character आया, कितना single bond character आया and many more things. So let's say if we have this example, suppose let's say having double bond here and let's say having double bond here, and if we have to compare let's say carbon bond length, it may be A, B, C, D, E, F and let's say G. So if we have to compare their bond length का order, obviously bond length will be inversely proportional to bond strength. जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होने वाला है. whichever have more single bond character, bond length will be longer. नहीं थाने वाले बच्चे तुम लोग ये पढ़ने के अलावा कुछ खेल भी रहे हो क्या साथ में? No, sir. अच्छा ऐसा मुझे दिख रहा है. अच्छा अब थोड़ा ठीक सा दिख रहा है, मतलब फेस भी थोड़ा ठीक से दिख रहा है ना. So anyway, let's say if you see this structure as per bond length is concerned, ये ऐसा एग्जाम्पल तुम लोगों ने किया रहेगा, मतलब कर सकते हो शायद. The point is in G it is exactly double bond. There is no delocalization either through resonance or there is no delocalization either through hyperconjugation, है ना. So retain its double bond character exactly. So its bond length should be shortest. Longest will be that of E, as E consists only bond order as a 1. It does not acquire any double bond character through resonance or through hyperconjugation. E के बाद क्या आना चाहिए? E के बाद it should be D. The D के बाद it should be F. To understand it is, let's say we have only one hydrogen attached here
but here let's say we have two hydrogens. So F acquire double bond character twice due to hyperconjugation. D acquire double bond character due to only one hyperconjugating structure. So it have less double bond character in comparison to that of F. F के बाद it should be B. अच्छा, B can acquire double bond character through resonance, but obviously it have more single bond character in comparison to that of A and C. How we can compare A and C? Resonance की वजह से तो same काम, but again let's say through hyperconjugation this double bond become single bond twice, है ना, due to hyperconjugation, and this double bond becomes single bond once only, है ना. तो A consists more single bond character in comparison to C, so it is A and then more than that of C. So let's say to compare their bond length. So shouldn't B be the second smallest as it occurs double bond twice in while resonance? B में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है it is due to resonance, है ना, and resonance will be more effective than that of hyperconjugation, and the more important thing is जब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वी हैव चार्ज का सेपरेशन, है ना. चार्ज का सेपरेशन मींस लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर, है ना. Okay, sir. तो मतलब ये obviously A and C retain their double bond character, but थोड़ा सा single bond character आएगा उसमें, और इसमें थोड़ा सा double bond character आएगा बस, है ना. Sure. So A and C both have resonance as well as hyperconjugation like contribution, but B only has resonance contribution, right? So why is it that B is longer than A and C? इसमें कुछ बस देखो ऐसा समझो कि let's say suppose if it is double bond and double bond, if you draw its resonating structure it will be plus minus, and let's say it will be minus plus double bond, है ना. Its contribution towards hybrid structure will be much higher than that of these contributions, है ना. Yes sir, thank you. Yeah, got it. तो कुछ ऐसे, हाँ. Why will A be greater than C? A greater than C means it is not due to resonance. Due to resonance, A and C should be equal, but A becomes single bond twice due to hyperconjugation, and C becomes single bond once due to hyperconjugation. जैसे ऐसे मतलब और भी ढेर सारे क्वेश्चन तो तुमने किए होंगे, या CH बॉन्ड लेंथ या CCl बॉन्ड लेंथ. Whenever we have to compare CH bond length, we can break bond homolytically and then we can compare free radical का stability. And whenever let's say we have to compare CCl bond, we can break bond heterolytically and we can compare stability of carbocation, है ना. तो ऐसा कुछ एग्जांपल तुमने किए रहेंगे पहले भी, है ना. Sir, हाँ बोलो. sir, what is the exact definition of hyperconjugation? Exact definition means सब conjugation का meaning है pi and pi, hyperconjugation का meaning है sigma and pi, है ना. So hyperconjugation means sigma and pi का sideways overlapping is hyperconjugation. To have hyperconjugation, we should have electron density का difference. If sigma is electron rich, pi should be electron deficient, and if sigma is electron deficient, pi should be electron rich, है ना.
So we can explain both plus hyperconjugation as well as minus hyperconjugation, है ना? Yes, sir. कुछ ऐसा भी लिखा होता है, it is also known as no bond resonance, sigma bond resonance, ऐसा कुछ है ना? But let's say if we compare stability, है ना? Let's say stability. In GOC around 30% questions are related with stability, है ना? Stability of carbocation, stability of free radical, stability of carbene, alkene, alkane, anything. तो at least 2-3 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ समझ लेंगे stability comparison के. So one of the common question is this may be, let's say, cyclohexane, it may be cyclohexene, it may be, let's say, this type of alkene, this is this type of alkene, and let's say it is benzene. This may be, let's say, A, B, C, D and E. Out of them, which one is most stable? E. ये E नहीं है यार, मतलब most stable बताओ. Out of them, most stable. Most stable means let's say इसका heat of formation सबसे ज़्यादा negative हो सकता था, है ना? ये हो ना most stable का मीनिंग. किसका heat of formation सबसे ज़्यादा negative हो सकता था? मतलब let's say if you see this graph, on this axis, let's say we have energy, and let's say this may be cyclohexane having least energy due to only sigma bonds. It consists only sigma bond और बाकी सब में let's say pi bond है. Sigma bond formation, more energy will release and more stable. Now the point is, if this cyclohexene during its hydrogenation, let's say 120 kilojoule per mole heat will release. So confirmly cyclohexane should be more stable than cyclohexene. तो उसमें pi bond है, और let's say cyclohexane में instead of pi bond we have additional sigma bonds. Same, let's say we have this compound plus let's say 2H2 है ना? टेक्निकली यहाँ या थियोटिकली जो तुमने थर्मो में भी पढ़ा होता है, 240 किलोजूल एनर्जी शुड रिलीज. दिस वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा आल्सो, है ना? सो लोगों ने पढ़ा रहेगा कि एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन के लिए लेट्स से अगर x किलो कैलोरी रिलीज होगा तो 2 के लिए 2x हो जाना चाहिए, है ना? If you see, let's say this compound, which is conjugated diene plus 2H2, in this case heat released will be minus 232 kilojoule. इसमें डिफरेंस को क्या हम लोग क्या बोल सकते थे? तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड विल बी लेट्स से सेम एज minus 8 kilojoule resonance energy. If we see, let's say another example, this may be one of the resonating structure of benzene plus 3H2. इसमें कितना हीट रिलीज होना चाहिए था? Let's say 360. So it may be minus 360 kilojoule. Benzene is something, let's say, look like this plus 3H2, and experimentally this energy release is found to be minus 208 kilojoule, है ना? So this difference, which is minus 152 kilojoule, will be resonance energy of benzene, है ना? So once we have this type of data, or once we have information regarding this type of data, अब शायद उसका stability comparison बहुत मुश्किल सा नहीं है ना? Obviously जिसका एनर्जी कम है it should be more stable, जिसका एनर्जी ज़्यादा है it should be relatively unstable. जैसा stability comparison में क्या हो जाता, A should be most stable than that of B. B will be more stable than that of E. E should be more stable than that of D, and D should be more stable than that of C.
So here do we have to see heat of hydrogenation per pi bond only? पर पाई बॉन्ड नहीं समझ, स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर मोल ऑफ ABCD है ना। सर क्योंकि बोला था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी उससे, इसी लेवल पे। हाँ, तो जब भी हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो पर मोल ऑफ कंपाउंड, पर मोल ऑफ H2 नहीं है ना। The heat of hydrogenation is defined as when 1 mole of compound का hydrogenation होगा, है ना। It may require 1 mole of H2, it may require 2 mole of H2, depending on number of pi bonds. Sure. हाँ, So why is it that benzene is above cyclohexane? I mean, it should be stable, right? अच्छा मतलब अच्छा ये जो स्टेबिलिटी का मीनिंग है ना, स्टेबिलिटी मींस बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड. इट डज नॉट मींस कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल है. इट मींस कि वो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है ना. ये समझा? Sure. Yes, sir. जितना ये बनने में हीट रिलीज हो रहा है मींस वो उतना ज्यादा अनस्टेबल है. यही हो ना, मतलब लेट्स हमने ये रेफरेंस ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में देख लिया हमने. Sir, or aromatic is more stable than non-aromatic, na? If we go to see. Corresponding means at least this should consist same number of pi bond type, है ना. जैसा Okay, sir. जैसे ये कुछ हम लोग ऐसा समझ सकते थे यार. If we have this compound and let's say if we have this type of compound, let's say ना, तो I can say benzene can be much more stable in comparison to this. एक में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है और एक में नहीं है ना. Sure. How is B greater than E? B greater than E as B वाले केस में B वाले केस में सिर्फ 120 रिलीज हो रहा है और D वाले केस में 232 रिलीज हो Sir, रहा है. B and E. Benzene and B. बार-बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो. बेटा बेंजीन कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है ना. मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड में कम एनर्जी रिलीज होता बनने में, सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता. No, according to stability, E must be greater than B, right? कोई बच्चा समझाओ यार उसको, मैं जो बोलना चाहता हूँ. तुम्हें थोड़ी देर पहले तुम ही बोल रहे ना. हाँ, मैं समझ गया. Yes, sir. वो भी मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो कंपाउंड ऑलरेडी अनस्टेबल था शायद, है ना. जैसे अगर मैं इस डेटा पॉइंट से देखने की कोशिश करूं साइक्लोहेक्सेन के, है ना, तो साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा अनस्टेबल है ना. तो बेंजीन कैन बी अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्सेन as cyclohexane consists only sigma bonds. इसके फॉर्मेशन में ज्यादा हीट रिलीज हो जाना चाहिए, है ना. Yes, sir, understood. Yeah. दोबारा तो नहीं पूछेगा. ठीक, बहुत अच्छा बच्चा है ना. Sir. हाँ दादर बोलो. डेटा के बिना कैसे करेंगे? ओहो, ये परेशानी है तुम्हारी. अच्छा, ये क्वेश्चन ना तुम लोगों को अब नहीं पूछना चाहिए. अब तो 1 साल हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ना सब कुछ डेटाबेस ही है.
उस डेटा के बेस पे हम लोग कुछ थियरी बना लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग थियरी से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। जैसे हम लोग को ये कैसे पता चला यार इथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल ये हम लोग को कैसे पता चलेगा यार इथाइल कार्बोकैटायन is more stable than methyl carbocattion? Inductive effect. अरे बेटा वो इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन थियरी तो उसके बाद बना ना, जब हम लोग को पहले वो पता चल गया है ना। मतलब पहले हम लोग को पता चला कि ये इससे ज्यादा स्टेबल है, और अब तक हम लोग ने इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है, अगर उल्टा भी होता ना तो भी मैं एक्सप्लेन कर लेता है ना। तो बच्चे ऑब्वियसली सब कुछ पहले एक्सपेरिमेंटल ही है, सब कुछ पहले डेटा बेस्ड ही है, उसको समझने के लिए, याद रखने के लिए उस थियरी हम लोग बना लेते हैं ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से सपोज अगर मुझे ऐसा पता है, उसके बाद मैं थियरी बना रहा हूँ कि यार हाँ ज्यादा सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कैन बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दैट हैविंग पाई बॉन्ड है ना। और अगर बेंजीन भी ज्यादा स्टेबल होता तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर ही लेता है ना। तो पहले ऑब्वियसली सब कुछ डेटा बेस्ड टाइप है, देन हम लोग थियरी बना रहे हैं ना। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है। सो एनीवे मतलब ये ऐसा कुछ, ये एग्जांपल तुमको समझ में आया कि स्टेबिलिटी कंपैरिजन इज बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपैरिजन। बेंजीन इट डज नॉट मींस कि बेंजीन सबसे स्टेबल है। ये तुम लोग के बुकलेट में एक क्वेश्चन था, ये आई होप इट इज एक्सरसाइज 2 का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स था है ना, कि रेजोनेंस कुछ एक्सरसाइज 2 है रेजोनेंस वाला, उसमें था आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू, आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, 1 2 3 I J तक कुछ ऐसे दिए होते स्टेटमेंट है ना। उसमें एक ऑप्शन था कि ये कंपाउंड हैविंग रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड डज नॉट हैव रेजोनेंस है ना। वो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड को ही कंपेयर कर सकते हैं ना। मतलब ऑल्दो बेंजीन हैव रेजोनेंस बट इट डज नॉट मींस कि वो दुनिया में बाकी किसी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस नहीं है उससे स्टेबल हो जाएगा है ना। Sir, can you please explain heat of hydrogenation per pi bond क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया है। मतलब पर पाई बॉन्ड क्वेश्चन में पूछा है तब हम लोग जरूर कंपेयर करेंगे है ना। बट as per stability is concerned, as per just for example, if you see this example only, having double bond here and let's say this है ना। सपोज मुझे अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो लेट्स से अगर मुझसे पूछा गया है डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, मुझसे पूछा गया है कि डेल्टा H हाइड्रोजनेशन इन दोनों में किसका ज्यादा है, कंफर्मली डेल्टा H हाइड्रोजनेशन इज मोर फॉर दिस कंपाउंड। आई नो द वैल्यू डेटा है ना, ये 232 और ये 120, बट डेलिबरेटली अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया हुआ है डेल्टा H हाइड्रोजनेशन पर इक्विवेलेंट ऑफ H2 या पर मोल ऑफ H2, तो ऑब्वियसली ये तो 120 का 120 ही रहा, और वो क्या हो जाएगा 116, 232 डिवाइड बाई 2, तब इसका आंसर कंफर्मली कुछ इस टाइप का होता है ना। Sir, how to convert 1,3,5 hexatriene to benzene, जो आपने वो टॉप राइट कॉर्नर पे बनाया था। ये कौन बच्ची है परेशान कर रही है बेटा। सुना जो कुछ रिलेवेंट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके रिलेटेड पहले डिस्कस करो, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं ना, बट हाल फिलहाल है ना। सो लेट्स से अगर मैं पर मोल ऑफ H2 है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है ना, जैसे इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -120 है और इसका -116 हो जाता, बट पर मोल इट विल बी -232 एंड इट इज -120 है। तो जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, फिर रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री है ना, जो भी कुछ है हम लोग पर मोल डिफाइन कर रहे हैं ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन में जिसका फॉर्मेशन है उसका 1 मोल,
हीट ऑफ कंबसन मीन्स जिसका कंबसन है उसका 1 मोल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स जिसका हाइड्रोजनेशन है उसका 1 मोल, है ना। जैसे हम लोग यही हम लोग देखें कि भाई डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन ही कंपेयर कर लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन as per hydrogenation is concerned, few examples are relatively easy. Those who have done कुछ ये क्लास नोट्स में या बुकलेट के किसी क्वेश्चन में होगा कंफर्मली, है ना। So out of these two, which one have more heat of hydrogenation? वैसे out of these two, which one is more unstable, है ना। इन दोनों से कौन से कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हायर रहने वाला है? सेकंड का ज्यादा। Second should have more heat of hydrogenation. Second should be relatively more unstable, as sp2 hybridized carbon, if it is present in bigger cyclic ring, we can have less angle strain. If sp2 hybridized carbon present in smaller cyclic ring, we can have more angle strain. Similar to this, let's say if the compound is of this type, let's say this may be one of the alkene, and similarly let's say if we have another alkene, out of these two which one have second should have more heat of hydrogenation. Yes sir. हाँ, ये बहुत अच्छा बच्चा है ना, वही आंसर। फर्स्ट वन है मोर हीट ऑफ हाइड्रोजन। अब तो बोर्ड पे लिखा है। हाँ, तो ये जो बच्चे ने आंसर बताया उसका रीजन भी बताओ। सब बच्चों को याद दिलाओ, है ना, सब बच्चों को पता है रीजन, बस याद दिलाओ, है ना। सर 6 से ज्यादा होता है तो स्ट्रेस ज्यादा स्टेबल हो जाता है उस केस में। 6 से पहले तो ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है ना। ऐसा सब बच्चों ने सीखा होता है कि इन द केस ऑफ 8, 9, 10, 11 carbon cyclic ring, cis is more stable than that of trans, as in the case of trans we have bond twist basically, है ना। But if we have more cyclic ring, more number of carbon in cycle, then trans can be more stable than that of cis, है ना। ऐसा पढ़ा होता है कुछ बच्चों ने। Same if you see, let's say another example of heat of hydrogenation, it may be of, let's say, this type. This may be one of the compound, let's say bicyclo compound, and similarly let's say we have another bicyclo compound. Out of these two, which one have more heat of hydrogenation? फर्स्ट वन सर। क्यों? सेकंड वाला सिस ज्यादा स्टेबल रहेगा। सिस और ट्रांस है ही नहीं यहाँ, तो ऐसा मेंशन ही नहीं किया है ना। फर्स्ट वाले का सिस पता नहीं। अच्छा, पहले मैं ना तुझे आंसर बताता हूँ ना। आंसर देख ये है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा लोग ऐसा मतलब देख सकते थे यार, यहाँ जो डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट इज प्रेजेंट विद बिगर साइक्लिक रिंग, है ना। जो दोनों के दोनों sp2 कार्बन है, दे आर प्रेजेंट विद बिगर साइक्लिक रिंग, कैन हैव लेस एंगल स्ट्रेन in comparison to, let's say, this compound in which both sp2 carbon can be present in smaller cyclic ring. So अगर bigger cyclic ring में present है, compound can be relatively unstable, sorry, compound can be relatively stable, it can have less heat of hydrogenation. So sir, this again becomes a question of stability only. हाँ,
ऑब्वियसली मतलब अगर आइसोमरिक एल्कीन के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आइसोमरिक के लिए ना, तो ऑब्वियसली जो सेम कंपाउंड देने वाले हैं तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में मैं देखूंगा, बाकी है ना कौन अनस्टेबल है। तो ऐसा उन्होंने पढ़ा भी होगा यार, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोमरिक एल्कीन शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी, है ना। अच्छा तो पूरा जीओसी सब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही है, आइदर इट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एनीथिंग, है ना। We can take few example of, let's say, delta H of combustion. The combustion is also found to be exothermic process. So वहाँ भी heat of combustion should be inversely proportional to stability. बस यहाँ के हम लोग एक दो एग्जाम्पल रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जैसा let's say it is cyclopropane, it may be let's say cyclobutane, similarly cyclopentane and let's say cyclohexane. Out of these four, हेक्सेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होता जाएगा। हाँ वो ऐसा क्वेश्चन खत्म होने दिया करो यार, डराओ नहीं, है ना, रुको। So let's say it is A, B, C, D. हाँ अब तुम सही बोल रहे हो ना। So as per heat of combustion is concerned, D should be more than that of C, more than that of B, more than that of A. ये क्यों है ऐसा? हाँ मतलब ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा ही हीट निकलेगा। बिल्कुल, मोर कार्बन कंटेंट या मोर हाइड्रोजन कंटेंट पर मोल, है ना। सो वी शुड हैव मोर हीट ऑफ कंबशन। हाँ बट है ना, बट लेट्स से सर, हाँ इसमें एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं ना। एंगल स्ट्रेन से हम लोग उल्टा प्रूव कर लेंगे, है ना। तो वही रीजन याद रखने की कोशिश करना है जिससे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सही दिखे, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। ओके सर। हाँ तो जैसे एंगल स्ट्रेन अब आएगा शायद, जैसे बट इफ वी हैव दिस एग्जांपल, लेट्स से सपोज, है ना, इफ वी हैव दिस एग्जांपल, नाउ वी हैव सेम कार्बन कंटेंट, है ना, same molecular formula, same hydrogen. So now answer of this part will be A more than B more than C more than D, है ना। इसमें हम लोग कंफर्मली बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में we have more angle strain than second then third and then fourth, कंफर्मली, है ना, ऐसा कुछ बोलेंगे। सेम साइड में होंगे, डबल बॉन्ड के, और यहाँ दोनों एच अपोजिट साइड में होंगे। in delta H of combustion, another typical example may be, let's say it is normal pentane,
this compound may be, let's say, isopentane, and similarly, let's say this example may be neopentane. तो एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, हीट ऑफ कंबसन कंपेयर करना है उसका, है ना? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट हियर, देयर इज नो रेजोनेंस, नथिंग स्पेशल टाइप, है ना? इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है आउट ऑफ ए बी सी? यार कंपेयर कैसे करना पड़ेगा? सर एबीसी मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया तूने या हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर बताया? हीट ऑफ कंबशन का। हीट ऑफ कंबसन का, हाँ बहुत अच्छा बचा। लो उसका रीजन ही बताओ मुझे जरा। सही आंसर तुम्हारा है ना? तुक्का मारा था। ठीक है, फाइनली आईआईटी जेईई इज ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो सब मैटर करने वाला है ना? तो ऐसा कोई लॉजिकल तुक्का नहीं मारेगा? ऐसे थोड़ा सोचा कि ए स्ट्रेट चेन है और सी ब्रांच है, तो थोड़ा ऐसे। अच्छा, स्ट्रेट चेन का दिखने में अच्छा लग रहा है ऐसा? कार्बन आइटम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो कंबशन में ज्यादा एनर्जी लगेगी। कार्बन एटम स्टेबल हो जाएगा? किस वाले कैसे स्टेबल होगा? मतलब ब्रांचिंग मतलब ब्रांचिंग से स्टेबिलिटी कैसे आएगा? अच्छा, मतलब एज पर स्टेरिक क्राउडिंग वो सब कंसर्न, वो सब फालतू की बातें लग रहा है, क्योंकि ऐसा दो मिथाइल का स्टेरिक इफेक्ट और एक इथाइल का स्टेरिक इफेक्ट वैसा कंपेयर करना बड़ा मुश्किल सा है। बट लेट्स से इफ यू सी इट कंसिस्ट 12 primary hydrogens. Let's say it consists 9 primary hydrogens and it consists 6 primary hydrogen. Apart from this कुछ secondary and tertiary hydrogen भी है, total isomer तो है, same molecular formula. If you remember something कि primary hydrogen form strongest bond with carbon, है ना? कैसे पता चलेगा? Corresponding primary free radical will be most unstable. या बस यह समझ लो कि इसको एटोमाइज करने के लिए, है ना, इसको एटोमाइज करने के लिए, इसको कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना? मैक्सिमम हीट अगर सप्लाई करना पड़ा मींस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन मैक्सिमम हीट विल रिलीज आल्सो. So whichever alkane consists maximum number of 1 degree or primary hydrogen, maximum energy will release during its formation and thus it should be most stable, है ना? तो वो statement कोई बच्चे चाहो तो लिख भी लेना कि भाई more branched alkane can be more stable, है ना? कुछ इस टाइप का समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसा 12 इस टाइप के हाइड्रोजन है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दीज हाइड्रोजन्स. उसमें स्टेबल रेडिकल बनेगा, इसमें अनस्टेबल बनेगा. सो इन द केस ऑफ अनस्टेबल वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू फॉर्म दिस. तो प्राइमरी हाइड्रोजन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी हाइड्रोजन, इन कंपैरिजन टू टर्शियरी हाइड्रोजन. इन द केस ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन वी हैव मोर स्टेबल फ्री रेडिकल. सर हाँ, ट्रांस 10 के बाद स्टेबल होता है कि 12 के बाद? 12 के बाद, है ना? फर्स्ट 4 के लिए था ऐसा, C8, C9, C10, C11. एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट 4 के लिए सिस ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ट्रांस, है ना? बट
15 के लिए तो कंफर्मली सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस है ना. 10 के लिए भी सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस. कुछ हम लोग ये वाला आंसर क्या ABC है ना? इसका हाँ इस आंसर विल बी ABC एज पर हीट ऑफ कंबशन इज कंसर्न. हाँ ठीक है. लेट्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इससे रिलेटेड. लेट्स से डाइपोल मोमेंट है ना, म्यू either it is related to direction of dipole moment, either it is related to magnitude of dipole moment. Vessa, let's say if it is this example having let's say double bond similar to this, let's say we can have this example. This may be of hydrogen and hydrogen, let's say NH3. This may be fluorine and fluorine, let's say NF3. This may be of this type of compound, let's say pyridine. This may be, let's say, pyrrole. Similarly, let's say this may be furan. It is, let's say, aniline, and let's say it is nitrobenzene. It may be of this type of compound. And similarly, ये कुछ एग्जाम्पल तुम लोग देखे हैं. So as per direction of dipole moment is concerned, direction of dipole moment, इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसा रहने वाला है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. In this case, direction of dipole moment should be upward. We know due to heterolytic breaking of this bond, if we have carbocation on this carbon, it will be aromatic. है ना? In this case, direction of dipole moment will be, let's say, towards ring. Since अगर ये positive pole बना, ये negative pole बना, then it will be aromatic cyclic ring, let's say. In this case, direction of dipole moment will be towards lone pair of electron. Bond pair का contribution as well as lone pair का contribution will be in upward direction. अच्छा, इसमें lone pair का contribution तो upward है and bond pair का contribution downward है. Net dipole moment upward होता है, इसमें downward होता है. Net dipole moment is downward. But obviously ये बड़ा common सा example होता है कि the magnitude of this dipole moment will be less than that of NH3 है ना, basic chemical bonding का example. In this case, direction of dipole moment downward, bond pair as well as lone pair का contribution है ना. So CN bond का dipole moment will be downward, let's say, and this lone pair of electron does not participate in resonance and thus downward. इसके लिए the direction of dipole moment is found to be upward. Let's say this lone pair of electron effectively participate in resonance. So, इन दोनों में से किसका dipole moment is found to be higher? First one है ना, pyridine. Lone pair as well as bond का contribution in the same direction basically है ना. इस वाले केस में प्लस R and माइनस I अपोजिट है, तो कुछ तो कैंसल्ड आउट हो जाता है उसमें ना. In this case, direction of dipole moment
In this case, direction of dipole moment is found to be downward. Although it's one of the lone pair of electron participate in resonance, but it have another lone pair of electron which not participate in resonance. So due to, let's say, lone pair contribution, experimentally its down dipole moment का direction is found to be towards oxygen. In this case, due to effective plus R effect, it is overall found to be activating group, and in this case we know it is strongly deactivating group. ये भी similar example है जैसा first and second था. The 7 membered ring से 5 membered ring के direction में है ना. As once we have positive charge here, ये कुछ tropylium cation type बन जाता है, and then let's say 5 है ना. Same in this case, इस compound का नाम क्या होता था? Remember Juitalin के जैसे azulene है ना. हाँ, ये सब बच्चों ने example किया होगा, सबके notes में होगा. Azulene है ना. So if we draw, it's one of the resonating structure in which both ring will be aromatic. यहाँ positive charge का delocalization है और यहाँ let's say negative charge का delocalization है. So in this azulene is found to be highly polar, and let's say towards smaller ring. उसका डाइपोल का वैल्यू 1.5 डी बाय रहता है. ये देखो तोड़ दिया बच्चे ने, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. सर पायरोन को कैसे कंपेयर किया? इन दोनों में कुछ ऐसा समझ लो कि इसका प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई अपोजिट है बेसिकली है ना, और उसमें मतलब ऐड हो गया. बॉन्ड पेयर को कंपेयर करते तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. हाँ. मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट, बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है साथ में रेजोनेंस. तो ये फुरान का भी फिर ऊपर होना चाहिए. उसमें एक तो उसका प्लस आर इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इसका था. लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन उसका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऊपर, बट उसमें एक लोन पेयर एडिशनल है जो डाउनवर्ड ही है ना. So could you please explain 1 and 2 again? पहले तुमने नाम बताया, मैं बताऊंगा जरूर है ना. सर वो पीडी वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो? पीडी और उसके राइट हैंड साइड. नहीं रुक मैं आऊंगा. हाँ थाना वाले बच्चा आदित्य. Yes sir. हाँ आदित्य, ये फर्स्ट और सेकंड वाले जो एग्जाम्पल हैं वो कुछ इस टाइप के, मतलब कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ा रहेगा. दे आर नोन एज सूडो एरोमेटिक कंपाउंड या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स. क्वासी एरोमेटिक मींस इट्स वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस है ना. So one of the resonating structures will be like this, and this positive charge can delocalize in ring. So this will be fair enough contributing structure as one of the ring is found to be aromatic है ना. तो इसमें इसका उल्टा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तब ये स्टेबल होता है ना 6 pi इलेक्ट्रॉन्स. हाँ आदित्य समझ गए तुम मुझे है ना. Yes sir, understood. Thank you. हाँ नेरुल में कोई बच्चा पूछ रहा था. नहीं सर वो पीरिडीन और उसके राइट हैंड साइड. पिरीडीन और पायरोल है ना. Pyridine में this lone pair of electron does not participate in resonance, so lone pair as well as bond pair will be downward. In this case bond pair का contribution तो downward है, but effectively lone pair का contribution upward है due to its delocalization. And aromaticity का part है, so due to effective delocalization plus R effect is more effective than that of its minus I effect, and then वो upward है let's say.
सर मुझे डाउट था हाँ बिल्कुल, इसलिए फोन किया है, सॉरी इसलिए मैं तो पूछा था। जो पिछले इसमें नियो पेंटेन था ना, हाँ हाँ वो सबसे स्टेबल था ना, हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए ना। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी का कोई कोरिलेशन नहीं है ना। ओके सर। अदरवाइज CNG का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होना चाहिए था, वो गैस है, और कोल जो सॉलिड है, कोयला है ना, उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था। नहीं बेटा, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। ये So if you see the example of dipole moment, this particular example, it is CH2Cl, CH2Cl. Let's say it may be vicinal dichloride or it may be 1,2 dichloroethane. ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है? सिस ट्रांस तो होगा ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ पढ़ा रहेगा। इन द केस ऑफ कन्फर्मर्स द नेट डाइपोल मोमेंट मे बी वेटेड एवरेज, बेसिकली ना। वेटेड एवरेज मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कन्फर्मर मल्टीप्लाइड बाय its dipole moment, और उसका additive will be the net dipole moment of compound, है ना। So obviously it is found to be non-polar. इसका net dipole moment 0 तो होगा नहीं, since सारे के सारे मॉलिक्यूल एंटी फॉर्म में तो नहीं होंगे, है ना। Let's say कुछ स्क्यू फॉर्म में होंगे, कुछ गॉश फॉर्म में होंगे, ऐसे ढेर सारे, है ना। तो उसका dipole moment is non-zero confirmly। मुझे बस ये बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? If you increase temperature, its dipole moment will increase or decrease. दो ही चॉइस है तुम्हारे पास, है ना। मतलब मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जो सही है उसको ज्यादा अच्छे कर दूंगा, है ना। अच्छा, एक तो on increasing temperature its dipole moment increases experimentally. उसको मैं गंदी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आसान वाली लैंग्वेज में भी। पहले गंदी वाली लैंग्वेज में, है ना। जैसा in the case of trans or in the case of anti, in the case of anti, let's say it is H and H, it is chlorine, hydrogen and hydrogen, let's say, है ना। It is anti-form of this compound and its net dipole moment will be 0 confirmly, है ना। अच्छा, जो next stable सा कुछ दूसरा वाला हो सकता था, वो कुछ इस टाइप का, जैसे chlorine H and H, it will be chlorine H and H, है ना। Let's say it will be gauche form, तुम जिसको गैचे भी पढ़ सकते हो, ना, मतलब जो भी है। In this case, net dipole moment will be non-zero. So, as per entropy change for this reaction is concerned, it will be positive, negative, or zero. As per entropy change for this reaction is concerned, in which let's say Nt can convert into gauche by rotation about carbon-carbon single bond, है ना। If you remember, थर्मो में एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होता था? It is randomness or disorderness in terms of energy of system can be distributed, or it is basically degree of freedom के जैसा, है ना। If it has more degree of freedom, it has more randomness. Basically, it has more number of ways in which energy of system can be distributed. So you can see. एंटी बस पहले वाले का एंट्रोपी ज्यादा है क्या? रुको, ये एंटी बस एक ही कन्फर्मर है,
जबकि गोश 2 कन्फर्मर है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसको मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूं या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, दिस इज द सेम है ना। बट इस वाले केस में मैं इसको मतलब 2 गोश फॉर्म है बेसिकली ना, इट इज वेरी सिमिलर। बेंजीन रिंग में पैरा तो एक ही पोजीशन है बट ऑर्थो 2 होते हैं, तो इट हैज मोर ओरिएंटेशन, जिनको हम लोग गोश बोल सकते थे ना। इट हैज मोर ओरिएंटेशन जिसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, सेम एनर्जी है ना। एक क्लोरीन यहाँ, उसको मैं 120 रोटेट कर दूंगा तो यहाँ। सर बट आप इन दोनों का कंपेयर कर रहे हो ना, वो तो फिर फॉर्म मतलब चेंज हो जाएगा। बोल रहा हूँ इट हैज मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं गोश बोल सकता था ना। इट हैज मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी वजह से एंट्रोपी फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, सच दैट सर ऐसा क्यों नहीं बोलते कि एंटी पोजीशन में तब होगा जब दोनों का रोटेशन स्पीड ज्यादा होगा और गॉस फिर से कुछ तो बोलो, दोनों का रोटेशन स्पीड सेम। हाँ मतलब इसमें जो रोटेशन स्पीड होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट वो ज्यादा होगा, और गॉस में जब CH सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन की वजह से रोटेशन स्पीड कम हो जाएगा ना। रोटेशन स्पीड ये क्या है? हाँ मतलब सिंगल बॉन्ड के अबाउट कार्बन। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद यहाँ रोटेशन स्पीड सबसे कम होना चाहिए भाई, ये स्टेबल हो गया या तो रोटेट ही क्यों करेगा वो? अच्छा अब मैं सुनो ना, मतलब ये सब छोड़ो, एक मैं आसान सी लैंग्वेज बताता हूँ ना। ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? ये एंडोथर्मिक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, आसान सा। सिंस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो on increasing temperature we have more and more gauche form in comparison to anti form, and thus net dipole moment of dichloroethane increases with increase in temperature. वो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? और अच्छे बच्चों का स्टेटमेंट तुम लोग याद रख सकते हो कि भी इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नेट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो सकता है ना। सर उससे एंट्रोपी कंपेयर नहीं होगी? नहीं ठीक है, एंट्रोपी छोड़ दो ना, कोई पैसा नहीं है इसके ना। एंट्रोपी वो बच्चा तुम्हारी उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन स्पीड लेके आ जा रहा है। One of the most frequent question is stability of carbocation है ना, GOC में बहुत आता है ना, stability of carbocation. It's one of the exceptionally or few exceptionally stable carbocations. ऐसा if you see this carbocation can be relatively more stable है ना। वैसे इस कार्बोकेटाइन का मीनिंग समझ में आ रहा क्या है? तो ये है कुछ इस टाइप का, बेसिकली पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज है ना। So I can say this cation may be represented as this having positive charge here. अच्छा इसमें भी अगर लेट्स से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज अटैच्ड, और भी तीन है ना। So this carbocation is one of the most stable carbocation. One of the most stable carbocation can be more stable than that of let's say methyl and methyl carbocation. It can be more stable than that of tropylium carbocation. Tropylium carbocation can be more stable than that of if it is phenyl and phenyl ring, let's say. It can be more stable than
having positive charge here, let's say, can be more stable than that of positive charge here, and can be more stable than this cyclopropyl methyl carbocation. अच्छा, ये सीरीज तो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए, जो जेई सिलेबस के लिए किसी काम का नहीं है बेसिकली, ना मतलब जेई सिलेबस इज नॉट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन. जेई सिलेबस रिलेटेड टू tertiary carbocation, secondary carbocation, whichever have more number of hyperconjugating structure. But you can remember this type of series also. Before जेई एग्जाम तक जाते जाते ना तुम लोग और भी ढेर सारे एग्जाम लिखोगे उन सब के लिए, है ना, ऐसा कुछ टाइप का सीरीज तुम लोग याद रख सकते हो. बट एनीवे, नेक्स्ट इट मे बी फिनाइल एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन. सर वो जो ट्रोफाइलियम आयन है, हम लोग को बोला गया था कि जो ट्रोफाइलियम आयन है इट इज less stable than this fifth one that you've given. Fifth one means ये. हाँ. अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मेजर कैसे करते हो? मतलब हम लोग ने ये वाला तो डांसिंग रेजोनेंस, सर ने हम लोग को बोला था कि वो डांसिंग रेजोनेंस से देखना है. अच्छा, मतलब होता वैसे टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं जो सिग्मा रेजोनेंस है उसके लिए, ना. मुझे मतलब तुम ना जैसे नेट पे कुछ देखो, ऐसा सर्च करने की कोशिश करना, PKR प्लस वैल्यू, है ना. नेट पे कुछ ऐसा सर्च करने की कोशिश करना, PKR प्लस वैल्यू, है ना. अच्छा, PKR प्लस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अल्कोहल जब आयोनाइज करेगा टू गिव कार्बोकेटाइन एंड OH माइनस, है ना, तो इट इज वेरी सिमिलर टू जैसे PKA हम लोग पढ़ रहे थे या PKB पढ़ रहे थे. दिस इज द मेजर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना. जैसे इसका वैल्यू कुछ 9 पॉइंट समथिंग है ना, इसका वैल्यू कुछ 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, ये सब वैल्यूज ना मिल जाएंगे तुम लोगों को, है ना, PKR प्लस वैल्यूज. So anyway, this triphenyl carbocation, this triphenyl methyl carbocation can be more stable than that of methyl and methyl positive charge. वो PKR पे जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्टेबल होगा. उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जैसे वो डेटा है, जैसे वो डिफाइन किया हुआ है, ना. वो सिंपली वो सिर्फ नेगेटिव लोग और समथिंग नहीं है, ना. उसे बताया था कि वो मेजर होता है कार्बोकेटाइन के लिए, ना. दिस कैन बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन. ये सब बच्चों ने सीखा होता है कि 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन. बेंजाइल कार्बोकेटाइन कैन बी मोर और नियरली इक्वली स्टेबल एज दिस एलाइल कार्बोकेटाइन, nearly equally stable as this let's say secondary carbocation, and so on ढेर सारी कहानी है, ना. अच्छा, then it can be this phenyl carbocation or it may be this vinyl carbocation or it may be of this type, let's say, ना, bridged carbon having positive charge sp2 hybridized should not be present on let's say bridge, है ना. ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है क्या? ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है? हाँ है बिल्कुल है वो एरोमेटिक. इट कंसिस्ट 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, बट इज अनदर प्रूफ मींस ऑल्दो इट इज एरोमेटिक बट वो स्टेबल नहीं है, ना. उसकी तो बैंड बजी पड़ी देखो, है ना. सो एरोमेटिक गारंटेड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ना. हम कुछ और एक दो स्पेसिफिक एग्जांपल भी करेंगे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन.
or carb anion also. चलो कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं सीधे सीधे pKa ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड है ना, कार्ब एनायन। सर वो जो एग्जांपल है डांसी कजन सॉरी जो लास्ट में सर हमको दिखाया गया था कि सर डांसी कजन है वो ऊपर सबसे ऊपर हां सर तो हमको सर दिखाया गया था कि दैट स्टेबल देन दैट एरोमेटिक वो ट्रायंगल सिस्टम है आई मीन वो साइक्लोप्रोपेन ये कंफर्मली इससे ज्यादा स्टेबल है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू कैन चेक देयर pKr प्लस वैल्यूज है ना, पर जस्ट गो टू गूगल बुक्स और वहां टाइप करो pKr प्लस वैल्यूज है ना। सर 9 और ग्रेटर बोलते हैं। क्या 9 और ग्रेटर 9 और ग्रेटर किया चेक किया था। अच्छा, कुछ चेक किया है तुमने? हाँ सर। हाँ, किसका 9 है? इसका बाजू वाले का। बाजू वाला मींस ये वाला बाजू है यार 9 और ग्रेटर, हाँ वही सर 9 और और ग्रेटर। इसका हाँ उसका 9 है। अच्छा 9 पॉइंट समथिंग ना इसका है, बाकी सबका 9 से कम है यार। एक सेकंड सर रुको। हाँ देखो 9 पॉइंट समथिंग सिर्फ इसका है बस। अच्छा मैक्सिमम 10 के आसपास हो सकता है बस है ना। गूगल बुक्स पे जाओ, वहां देखो है ना। ये मेरे पास ये लिखा हुआ भी है। मैं देखो ऐसा क्या होता है वो नहीं है, ऐसा होता है बस हम लोग याद रख रहे हैं उसको ना। और सिर्फ साइक्लोप्रोपाइन So if you see, it's one of the example to compare stability of carbocation. Yes sir, this will be, suppose OCH3 and having positive charge here, lone pair. Similarly, let's say if it is chlorine having lone pair and positive charge, let's say it may be CH3 having positive charge, and similar to this, let's say this having positive charge, it is A, B, C, D, let's say no? A greater than C greater than B if you have to A, C, B, D है ना, वैसा ही कुछ है। तो as per JEE syllabus is concerned, we are more interested in this type of example है ना, instead of doing something ganda sa. So obviously in this case it's plus R and which is effective है ना, it is 2p overlapping. In this case although it has plus R but it is not effective है ना, 2p minus I effect dominate over plus R. In this case it is has hyperconjugation, and certainly D is unstable. So as per order of stability is concerned, it is A is most stable than that of C.
C will be more stable than that of B and B is more stable than that of D. ऐसे क्वेश्चन लोग बुकलेट में भी होता है ना टाइप का. Give an example related to, let's say, stability of carbene. You remember something which is known as singlet carbene, triplet carbene, है ना? जैसा if you see it is one unpaired electron, it is another unpaired electron and CH2. So it is triplet methylene carbene, and let's say another may be of this type, it is singlet methylene carbene. Similarly, if it is CCl2 of this type and let's say CCl2, मैं इसको थोड़ा ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर सकता था. Let's say chlorine and chlorine, chlorine and chlorine having both paired electron here. So let's say suppose it is first comparison, it may be let's say second comparison here. Same, let's say in this case it is fluorine, fluorine, paired electron and vacant orbital. It is chlorine, chlorine, paired electron and vacant orbital. And similarly, let's say fourth one, it is one unpaired electron, it is fluorine and fluorine. And let's say chlorine and chlorine. Let's say so we have different type of carbenes here to compare their stability. So in first one, which one is more stable? Sir, third वाले में first table, third वाले. थर्ड तक हम लोग आएंगे, अभी आएंगे, टेंशन ना लो. First, in first one, first is more stable. It is somewhere related to maximum multiplicity, or let's say Hund's rule. जैसे यहाँ multiplicity कितना है ट्रिपलेट, और यहाँ multiplicity क्या है सिंगलेट है ना, 2s plus 1 है ना. कुछ याद है ऐसा स्पिन ऐसा 2s plus 1 है ना. ऐसे in this case, apart from maximum multiplicity, now we can have plus r, minus r, plus I, minus I effect type also. Carbene is electron deficient. उसके outermost shell में we have only 6 electrons. So anything which is electron donating can stabilize carbene. Electron withdrawing group can destabilize carbene. In this case, chlorine having only minus I effect, which can destabilize this carbene. In this case also, chlorine having minus I effect through which it can destabilize this carbene, but in this case we can have plus R effect also, है ना? As carbon consists vacant orbital. So due to chlorine, carbene can destabilize, but ये कम डिस्टेबलाइज हो रहा है ना, क्योंकि कुछ तो प्लस आर इफेक्ट है उसका क्लोरीन का. सो इन दिस केस दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. फिर से पहले हम लोग को पता है, देन हम लोग जो मर्जी चाहे वो फैक्टर देख रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. वैसा ही है, मतलब लेट्स से जीओसी यू कैन हैव मोर देन 20 फैक्टर. अब बस अच्छा बच्चा वही होता है जो उसका करेक्ट रीजन याद रख पाए. So for third it is it 1 greater than 2? In third it should be 1 greater than 2, although both can have minus I effect, but in the case of fluorine
we can have effective 2p overlapping for its plus R effect, and in the case of chlorine we have less effective 2p overlapping. वहाँ less effective 2p overlapping है. Same in the case of fourth, इस plus R effect नहीं है ना. We have only minus I effect, and fluorine have more minus I effect in comparison to that of chlorine. ट्रिपलेट और ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा 2s plus 1 is something quantum which is known as spin multiplicity, है ना. s क्या है, टोटल स्पिन. जैसा यहाँ क्या है, प्लस हाफ, तो यहाँ स्पिन क्या हो गया 1, and then 2s plus 1 is 3, जिसको क्वांटम में पढ़ रहे होते हैं ट्रिपलेट, है ना. सर थर्ड वाले ने बैकवर्डिंग ही देनी है. क्लोरीन के पास देखिए 30 ऑर्बिटल, तो उसमें कार्बन का लोअर बैठ जा सकता है. हम तो देखने के लिए तो लोग सब कुछ देख सकते हैं, but the point is this carbon is already electron deficient, है ना. This carbon already consists 6 electrons in its outermost shell. So if this carbon is already electron deficient, it has less tendency to donate electron, है ना. ऐसा मैं कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. This carbene consists lone pair of electron also. This carbene consists vacant orbital also, but it can't behave as a nucleophile due to lone pair of electron, but it is electrophile due to vacant orbital, है ना. तो ऑलरेडी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्लोरीन को, है ना. One of the example related to carb anion. Suppose this may be one of the carb anion. Similarly, this may be another carb anion जिसमें साइक्लोब्यूटेन पे नेगेटिव चार्ज है. It may be negative charge on cyclopentane, and let's say this may be negative charge on cyclohexane. तुम लोग मुझे परेशान ना करो, मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ कीड़े कर देता हूँ, ऐसा है ना. Let's say it has same number of carbon, है ना, such that you can't compare through inductive effect. Otherwise कुछ और भी बोल सकते हो, है ना. Out of these four, which one is most stable या least stable, ये तो confirm, या तो decreasing order है ये, या ये increasing order है ना. सर DCB है. DCBA as far as stability is concerned, उसका उल्टा होता है. आंसर ABCD है ना. अरे DCBA था क्यों आंसर ऐसा?
जिस बच्चे ने DCBA बोला था सर एंगल स्ट्रेन बच्चे हम लोग इसमें ना एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जब ये कार्ब एनायन नहीं बना था तब भी ये कार्बन sp3 ही था, और कार्ब एनायन बनने के बाद भी वो sp3 ही है। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन एंगल स्ट्रेन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ही नहीं है ना। ओके सर जो बोल रहा हूँ समझ रहा है? अगर एंगल स्ट्रेन इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ही नहीं है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, तो कार्बन एनायन का स्टेबिलिटी मींस रिलेटिव है ना, उसके फॉर्मेशन कितना आसानी से हो पाया है ना। ये कुछ इस टाइप का ओके सर मैं कुछ इस टाइप का फंडा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से इन द केस ऑफ सपोज साइक्लोप्रोपेन, let's say in the case of cyclopropane सर हाँ बोलो। सर प्लस आर एफ का ज्यादा होता है कि Cl का? प्लस आर फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, है ना। सर उसका रीजन क्या होगा? उसमें 2p ओवरलैपिंग है फ्लोरीन में, और क्लोरीन में 2p 3p ओवरलैपिंग होगा कार्बन के साथ। ओके सर। So let's say in the case of cyclopropane, we know कि ये वाला जो बॉन्ड है वो exactly ऐसा नहीं रह पाता है ना। This is just the axial overlapping. Due to repulsion वो एक्सेस से बाहर चला जाता है ना। तो कुछ ऐसा सीखा होता है ना लोगों ने, बैंड बॉन्ड और बनाना बॉन्ड है ना। In the case of cyclopropane, so cyclopropane means इस सिचुएशन शायद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जैसा let's say suppose this may be another sigma bond if there is no distortion, let's say suppose है ना, then due to 60 degree they can repel each other, electron cloud will repel, and this will be the situation will be something, let's say this sigma bond ये कुछ इस टाइप का हो जाता। This bond gets shifted away from axis, and let's say same for this bond gets shifted away from axis. Now if you consider two different points in this orbital, let's say एक ये point है और let's say एक ये point है, let's say ना, मुझे किसमें distance ज़्यादा है? I hope this point and this point has more distance and thus less repulsion, है ना, in comparison to let's say this electron cloud and this electron cloud. So can we say to become stable, majority of electron cloud or orbital get stretched, है ना, such that these carbon atom become relatively electron deficient. And repeating again, since these orbitals get stretched, their electron clouds get shifted away from carbon relatively, such that actual cyclopropane may be something look like this. Somewhere in middle of these carbon atom we have more electron cloud, and thus these carbon atom will be relatively electron deficient. If these electron deficient carbon have negative charge, this will be relatively more stable situation now, है ना। अच्छा, instead of negative charge अगर वहाँ सब पे positive charge होता, so this positive charge will further intensified, it will be more unstable. मैं फिर से थोड़ा सा repeat कर देता हूँ। Due to repulsion between electron cloud, these orbitals get stretched. So majority of electron cloud है ना, इसे कुछ ऐसा shift हो गया है ना, majority of electron cloud gets shifted somewhere between carbon atoms and away from this axial overlapping. Due to excess of electron cloud, यहाँ delta negative charge आ गया and carbon become relatively more electron deficient.
So in cyclopropane, this positive charge already exists, let's say ना. तो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया मीन्स वो कंप्लीट -1 नहीं है फिर यहाँ, है ना, उसका कुछ माइनस तो यहाँ भी शिफ्टेड है फिर इफेक्टिवली, है ना. तो उस वाले केस में वो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी डिस्पर्स्ड है, डीलोकलाइज है. वैसी सिचुएशन यहाँ तक डिक्रीज होता जाता है. लेट्स से इन साइक्लोहेक्सेन -1 चार्ज रिमेन लोकलाइज्ड ऑन कार्बन एटम ओनली. So as far as stability का order is concerned, it may be look like this. हाँ, कार्बोकैटायन होता तो हम लोग एंगल स्ट्रेन भी बोल सकते थे, क्योंकि उसमें हाइब्रिड स्टेट चेंज होता. जैसे ही वो sp3 से sp2 बनेगा, एंगल स्ट्रेन विल इंक्रीज. और जिसमें ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है. सर, so suppose n डाइमिथाइल हेक्सेन है और उसके ऑर्थो पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है एक कंपाउंड में, और दूसरे कंपाउंड में n डाइमिथाइल है और एक ही CH3 ग्रुप अटैच्ड है हेक्सेन पे, मतलब उसके एडजेसेंट पोजीशन पर. एक बार फिर से आराम से, दादा वाला अच्छा बच्चा बोलो. एक n डाइमिथाइल हेक्सेन है, n डाइमिथाइल हेक्सेन, ये क्या हेक्सेन मतलब मैंने एक हेक्सेन ऐसा बनाया, ऐसा ना, एक ब्रांच NCH3CH3. अच्छा, n यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3. हाँ बोलो. अभी एडजेसेंट पोजीशन पे CH3 और CH3, यहाँ भी CH3 है ऐसा. हाँ हाँ, और यहाँ पर भी, और दूसरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही एडजेसेंट पोजीशन पे CH3. अच्छा, बहुत अच्छा. अच्छा, हाँ बोलना क्या करना है उसका. तो सर उसमें अपने को अगर मतलब वो एंगल देखना हो, कौन सा एंगल, वो जो लोन n का n और जो लोन पेयर है n का, n और लोन पेयर का एंगल क्या रहता है. अच्छा, मतलब कुछ टाइप का, लेट्स से सपोज ये लोन पेयर और ये बाकी ऐसा एंगल, ये क्या बोल. हाँ, मतलब जो भी रिपल्शन होगा वो NCH3CH3 के बीच में एंगल ऑफ रिपल्शन. हाँ, मतलब फिर तो ये पता है, इसलिए CH3 का एंगल ऐसा. हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी भावना को समझ गया. बोलो सर, किसका ज्यादा होगा, अच्छा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा. हाँ, बॉन्ड ये इसमें एज सच ये तो प्लेन से पहले से बाहर है, कुछ रेजोनेंस एज सच तो कुछ हो नहीं रहा है ना. तो आई कैन से this group is more bulkier in comparison to this. If this group is more bulkier, वो बाकी दोनों मिथाइल को पुश करेगा, अपने से दूर है ना. So technically or theoretically this bond angle should be relatively less, है ना. ओके सर. मैं तूने ऐसा क्वेश्चन पूछना ही क्यों चाहा, कहीं देखा तुमने ऐसा क्वेश्चन यार क्या कर रहे हो. सर, मैं सुबह में रिवाइज कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया था, इसलिए मैं पूछ रहा था. ऐसे मत किया करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार, ऐसा खतरनाक हो सकता है. कुछ एग्जांपल था तो उसमें अरे वो बेंजीन होगा उस साथ में, ऐसा तो नहीं था शायद. सॉरी सर. हाँ, शायद उसके अंदर का ऑक्सीजन भूल गया होगा, है ना. सो एनीवे, मतलब ये हम लोग सब करेंगे. अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अनफॉर्चुनेटली हमको टाइम नहीं है पाया आज. विल डिस्कस एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, विल डू आइसोमर्स आल्सो. बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम अपने क्लास नोट्स पढ़ो, इस AITS की प्रिपरेशन करो. जो डाउट्स है, जो तुम्हें एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे पूछो नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. सर, सर वो फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो नेगेटिव चार्ज है वो क्यों डिलोकलाइज होगा, मतलब तो कुछ ऐसा बॉन्ड से पोलराइज होना चाहिए ना. मतलब ऐसा कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर सकता है कि इस पे टोटल चार्ज विल बी -1, है ना. अब लेट्स से इस -1 में से सिर्फ यहाँ चार्ज बचा -0.7, है ना. सपोज यहाँ -0.1, यहाँ -0.1, यहाँ -0.1 टाइप है ना, क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्ज मुझे यहाँ भी दिख रहा है उसका, है ना.
सर पर जो नेगेटिव चार्ज वो आपको दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना? अरे तो बेटा वो मतलब है तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इसका मीनिंग कार्बन आयन का ना। कार्बन आयन मींस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा अनफॉर्चुनेटली जिस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता दिखता वो नेगेटिव चार्ज पे हम लोग रख देते हैं, बट वो नेगेटिव चार्ज तो पूरे सिस्टम पे ही है ना बस। हाँ ओके सर। ना जिस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता उस पे हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, बट पूरा का पूरा नेगेटिव कार्बन पे थोड़ी होता है। अरे इंडक्टिव इफेक्ट वही तो है। बस इंडक्टिव इफेक्ट जैसा मैं ये बता रहा हूँ, CH3 प्लस है ना, CH3 प्लस 1, तो ये प्लस 1 पूरा का पूरा हाइड्रोजन पे नहीं है ना, कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया हाइड्रोजन्स पे भी है ना। सर पर वो तो इंडक्टिव इफेक्ट तो को हम लोग टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं ना? अरे नहीं परमानेंट होते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट वो है पहले से ही। अरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है बस, टेम्पररी है ना। जब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा तब तक वो इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट है ना। ओके थैंक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का रिवीजन करेंगे एंड देन आइसोमर करेंगे हम लोग है ना। इस वाले बॉन्ड को जब हम लोग ब्रेक करके कार्बोकेटायन बनाते हैं तो सर यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे कार्बोकेटायन